And so Suchita ji, I just introduced quickly. Suchita ji is basically belongs from India only, but she's currently in UAE, and she's teaching numerology and lots of other occult sciences. Yeah, lots of other occult sciences she's teaching. Tarot she's teaching, sigil she's teaching. A lot of experience she has. 10 years, it's been 10 years now she's teaching different modalities in occult sciences. So you are actually having a good time, and it's a great opportunity we have today, Suchita ji with us, and teaching you a very good, beautiful numbers, the science of numbers behind it. Okay. So I'll hand over to Suchita ji for the so that she can start the session, and let's hope for the great evening and a learning full. Thank you, Rohani. Thank you so much for inviting me at this platform. अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले जो लोग मौजूद है मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ. So we'll start with a quick intro. Shakun. Yeah, hi. My name is Shakun, and I am basically a freelancer in UAE. I am into digital content creation, and I have two kids. One is 3, one is 4, and the other one is 10 years. Great. Any experience in occult? I'm doing currently Reiki level 1 for one of my friends. She Okay. has taught me, and she has attained mastery in Reiki. So on the level 2, I'll be doing in November with her. That's it. That's the only experience I have in occult. Great. Shruti. Hi, Suchita. Shruti, I'm a housewife, fully dedicated to all 3 people in my house. That's all I'm into. Big job. That's a big job. It is, believe me. This was the only good session I could ever have because this starts only at 9, and by 9, my house is like already on the bed. So Great. this is why I could choose this. And rest, yes, I have a keen interest. It has always intrigued me of, what numerology is all about, or astrology, learning about, Vedic astrology, or generally learning about, what our Indian culture is and how they make relevance and sense to a lot of things, and how few times that when I took up something seriously as manifestation, it worked. So then I developed more interest that maybe, I have an act for it, but by the time I should know whether it really makes sense and whether I can make that difference, or maybe how good I can be in this. So the idea of just going ahead with the message that came in was like, okay, let's understand how this thing goes, and where we fit in, what are the rights, wrongs, or maybe what are the real ways to think about this whole theory of, or the science of astrology, or you call it numerology, or you call it occult. I'm not so well with the terms. Don't So worry. I'm most naivest, I think, among the lot who have at least some background about it. Great. Kavita. Mute, so I don't bother everybody. Hello everyone. Hello. Yeah, I have done a numerology course, like very basic, like long time ago, but I don't remember much as of now. So I was again interested in just refreshing the knowledge, and pranic healing also I have done. Great. And I've taken sessions from Rohani ji, and it was really very great. And I was so much like it was an excellent this thing when I actually I'm down with cold and cough. From 2 days I had viral, so I'm little. Don't worry. Don't worry. So जाते जाते एक रेमेडी देखे जाएंगे healing की. Yes, Venu. So I'm also very interested in all these things like Great. healing, numerology, so Great. many like all the occult sciences. Very good. Yes, Venu. Yes. I am Benu and I stay in Dubai only. I have 2 kids, 12 and 13. And this has been now, area of interest because of all the social media presence. It is now too much. All thanks Yeah. to
and and now it can, help us in doing small changes in our lives. So Yes, that's why I wanted to great. hear about it. Yeah. Good to know about everyone. वैसे रूहानी ने इंट्रोड्यूस किया, बट थोड़ा सा बता देती हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं है इंट्रोडक्शन. माय नेम इज सुचेता दुरानी एंड आई एम इन ऑकल्ट साइंसेस सिंस लास्ट 10 years. मेरी Okay. जर्नी भी ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही शुरू हुई थी, बट आई थिंक हमारे हाथ में नहीं होता ये डेस्टिनी है कि आपको किस तरफ लेके आ रही है. तो 10 साल से शुरुआत मेरी हुई थी टैरो से, बिकॉज बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि कैसे टैरो कार्ड्स वर्क करते हैं, कैसे आंसर सही निकल आता है. बट वो एक मोडालिटी सीखते सीखते मैंने करीबन 19 मोडालिटी सीखी, एक के बाद एक के बाद एक. और उसके बाद जो था वो कंसल्टेंसीज का दौर शुरू हुआ. कंसल्टेंसी से ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट आया कि टीच करने में, क्योंकि कंसल्टेंसी में क्या होता है ना कि कोविड में बहुत मारा मारी हुई थी. मतलब लोग इतने परेशान हो गए थे, जॉब नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, ये है, वो है. तो मेरे को बहुत ज्यादा ये था कि भी पढ़ो. मैंने उनको बहुत एनकरेज किया कि आप खुद सीखो. आप हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, जो पंडितों के पास जाते हो, एंड यू आर स्पेंडिंग मनी फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. सो व्हाई नॉट टू लर्न योरसेल्फ. अगर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट है तो एक पीढ़ी जो है वो एजुकेट हो जाती है ना. वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपकी इस लाइफ के लिए ही नहीं है, ये बहुत लाइफ की जर्नी है. अगर आप जुड़े रहोगे तो इस बारे में बहुत बातें होंगी हमारी कि क्या है लाइफ, जर्नी क्या है, कैसे चलती है. तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई और पढ़ाना शुरू कर दिया. ऑकल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म है और हम लोग हर तरह के कोर्सेज करवाते हैं. न्यूमरोलॉजी में जो आज हम करने जा रहे हैं वो हम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी करवाते हैं. न्यूमरोलॉजी भी मार्केट में आपको बहुत सुनने को मिली होंगी, खासकर लोशु के बारे में बहुत सुना होगा. लोशु है, चलेडियन है, कबाला है, पाइथागोरस है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है. बट मैं जो है वो सिर्फ पाइथागोरस करवाती हूँ, जबकि मैंने कर सारी रखी है. मैंने लोशु भी कर रखा है, कबाला भी कर रखा है, चलेडियन भी कर रखा है, लेकिन करवाती मैं पाइथागोरस हूँ. क्यों, रीजन क्या है? हाँ, आई विल कम टू द पॉइंट. क्यों करवाती हूँ? क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी एक ऐसी न्यूमरोलॉजी है जिसमें कि कंप्लीट कंटेंट है. इसके बाद आपको कोई और न्यूमरोलॉजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो लोशु है वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, वो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक न्यूमरोलॉजी से उसका कोई लेना देना नहीं. वो एलिमेंट बेस्ड है. गलत वो भी नहीं है. गलत कब होता है? जब हम किसी दूसरे की चीज जो है उसमें अपने इंग्रेडिएंट डाल के उसकी रेसिपी चेंज कर दे. तो हमारे मार्केट वालों ने वही किया, क्योंकि वो शॉर्टकट है. चाइनीज चीजें शॉर्टकट होती हैं, आप जानते हो. फटाफट इधर उधर किया. तो उनकी रेमेडी उठाई, ड्राइवर कंडक्टर पकड़ा. आप लोगों को सुनने में भी आता होगा बहुत ज्यादा, ये वीडियोस देखते होगे. ड्राइवर कंडक्टर देखा मैच नहीं कर रहा तो तुरंत जो है अपना नेम करेक्ट कर लो, नेम चेंज कर लो आप. ये बहुत बीच में चला और आई थिंक ये हमारा मिशन रहा है कि इस चीज को जो था हमने काफी हद तक कम कराया मार्केट में कि नेम करेक्शन के पीछे मत भागिए, अनलेस एंड अनटिल इट इज डन विद लॉजिकली और ऑथेंटिकली. तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, ये वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं. पाइथागोरस का नाम तो आप सबने सुना होगा ना स्कूल टाइम में. किसी का वीडियो ऑन नहीं, किससे बात करूं, कोई एक तो रखो ऑन. ऐसे लगेगा मुझे मैं लेक्चर देके चली गई. सो मुझे मजा नहीं आता है ऐसे. सो आई वुड लाइक टू कनेक्ट. हाँ, एक जना रहे चाहे, कोई बात नहीं. तो जो पाइथागोरस थे उन्होंने हिंदू जो एस्ट्रोलॉजी है, हमारा वैदिक शास्त्र है, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए. तो उसी को बेस मान के उन्होंने जो स्कैटर्ड लिटरेचर था, एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखने जाओगे ना तो एक लाइफ कम है एस्ट्रोलॉजी के लिए, उसकी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करने के लिए. एक लाइफ कम है, अथाह समुद्र है वो. लेकिन उन्होंने क्या किया, उसी कंटेंट को प्रॉपरली जो था स्कैटर्ड कंटेंट, उसको उन्होंने सिस्टेमेटिकली ऑर्गेनाइज करके पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी बनाई, जिसमें आप हर तरह की प्रिडिक्शन कर सकते हो.
आप अपनी एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी का, कि उसकी लाइफ में पास्ट में क्या था, आगे क्या होने वाला है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, वो सारा आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। वो किस तरह के करियर में जाना चाहिए, उसको कौन कौन से मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप पार्टनर के साथ होगा अगर कल को शादी होगी, नेचर क्या है उसकी, पर्सनैलिटी क्या है उसकी, लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम चैलेंजेस आ सकते हैं, और उन चैलेंजेस को कैसे कब तक चलेंगे, आपके साल जो चल रहे हैं ये किस तरह का साल जाने वाला है, आने वाला साल कैसा होगा, या आने वाले 10 साल 15 साल, आप मतलब अनलिमिटेड है। आप किसी भी तरह की प्रोडिक्शन कर सकते हो। पहले कुंडली होती थी मैच मेकिंग के लिए, शादी ब्याह के लिए कुंडलियां मिला लो, लेकिन इसमें क्या है, अभी जब से न्यूमरोलॉजी इन हुई है, नंबर्स मिलाते हैं। तो कुंडली मिलाने के बाद भी तो झगड़े हो रहे हैं, 20-20 30-30 साल की शादी के बाद डाइवोर्स हो जाते हैं। होता है ना ऐसा, 32 गुण मिल रहे थे फिर भी डाइवोर्स हो गया। क्यों? कुछ तो वजह है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या है, जब आप इंसान की नेचर, उसकी पर्सनैलिटी तक एक दूसरे से मिला लेते हो कि आदतें कैसी हैं, तो चांसेस जो हैं मैरिज फेल होने के बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। फिर आप बिजनेस करने जा रहे हो, आपके बिजनेस का नाम कैसा होना चाहिए जो कि फ्रूटफुल हो। ये बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज है, इन्होंने ऐसे ही नाम नहीं रखे हुए, इन्होंने बकायदा जो है किसी ना किसी से चेक करवा के जो है वो रखे हैं। और अब तो बहुत ही ज्यादा लोग कॉशियस हो चुके हैं। बिजनेस का नाम रख सकते हो, आप किसी पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में करने जा रहे हो, वो चेक कर सकते हो, पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी। आपने जॉब ज्वाइन करनी है, वो कंपनी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, वो आप चेक कर सकते हो। मतलब कुछ भी चेक कर सकते हो। आपका बच्चा 10th 12th में है, कौन से करियर में जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चे बीच में इंजीनियरिंग छोड़ के आ जाते हैं, मन नहीं है। तो अगर शुरू में ही देख लोगे ना कि बच्चा किस तरह की फील्ड में जाना चाहता है, तो उसको मोटिवेट करो, और वो आप न्यूमरोलॉजी से देख सकते हो। मतलब इतना कुछ हम चेक कर सकते हैं, इसलिए पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। बाकी जो न्यूमरोलॉजीज हैं उसमें कंटेंट पूरा नहीं। अभी लोशु जो है वो एलिमेंट बेस्ड है। एलिमेंट मींस वुड, एयर, वाटर, एक्सेट्रा। अगर आप लोशु करते हो तो उसमें जो रेमेडीज हैं वो वैदिक नहीं होनी चाहिए। हमारे मार्केट वाले क्या कर रहे हैं, उसमें चंद्रमा की रेमेडी देंगे, राहु की देंगे, गुरु की देंगे। चाइनीज लोगों को क्या मालूम कि ये प्लैनेट्स क्या हैं, वो तो एलिमेंट के बेस पे चलते हैं। उनकी जो रेमेडीज है वो फेंगशुई की हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी चाइनीज न्यूमरोलॉजी सीखता है या उसको सीखना चाहता है, तो उसकी रेमेडीज भी फेंगशुई की होनी चाहिए, वैदिक नहीं। नहीं तो वो असर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर? इसलिए पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, ताकि अगर आप सीखने जा ही रहे हो तो कुछ ऐसी चीज सीखो जो सदियों तक काम आएगी आप। और आप लोग जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हालांकि ग्रुप में 10-12 थे, लेकिन शायद बिजी होंगे या कुछ कुछ प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन आप लोग अपनी मर्जी से नहीं बैठे हो। ऑकल्ट में आना अपनी मर्जी नहीं। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपको और ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। मेरी जर्नी जो थी, मैं जो थी वो साइंस स्टूडेंट हूँ। मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है, पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर मैंने एमसीए किया, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर 13 साल मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया, जॉब किया है। उसके बाद मैं ऑकल्ट में आई। और पाइथागोरस ने इसीलिए अट्रैक्ट किया बिकॉज दिस इज वेरी मच ऑथेंटिक, वेरी मच लॉजिकल, सेंसिबल है। आपको हर चीज के पीछे वजह, कारण मिलेगा। इस ये चीज ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण है। विश्वास नहीं कि नहीं नहीं पंडित जी ने बोला ऐसा होता है तो ऐसे ही होता है, नहीं, हर चीज का कारण है। तो जब आप लॉजिकली किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हो ना, तो वो चीज जो है कन्विंसिंग लगती है आपको भी और आपके क्लाइंट को भी। तो आपके लिए सीखना क्यों जरूरी है? पहली चीज, आपको अपनी लाइफ के बारे में पता चलेगा, वो आज की क्लास में समझ आ जाए। दूसरा, आप अपनी फैमिली का कर सकते हो, बच्चों को गाइड कर सकते हो, पेरेंट्स को, घर वालों को, जिसको भी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना करियर बनाइए, इस लोगों का भला कीजिए। जरूरी नहीं कि हर बार पैसे ही लेने होते हैं। आप जैसे आज हम फ्री क्लास कर रहे हैं, कोई भी ज्वाइन कर लेता। बीच बीच में इस तरह का भी करिए कि ये
जर्नी जो है ना, ये सोल की जर्नी है हमारी, तो कर्मा साथ जाएंगे। लेकिन कई बार मन में ऐसा सवाल आता है इस एज में आके करियर। मेरे पास स्टूडेंट जो है ना, वो 73 years old की लेडीज भी करके गई, और आज की डेट में वो प्रैक्टिस कर रही हैं, कमा रही हैं पैसा। कितना पैसा कमा रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जब आप पहली कमाई करोगे ना, जब हाथ में आती है तो अलग ही फीलिंग होती है। अपने लिए खुद से कुछ किया। और मैं बहुत प्रमोट करती हूँ लेडीज को कि करो, कुछ ना कुछ करो। और इस एज में तो बहुत ही अच्छा है। एक तो आपके पास एक्सपीरियंस है लाइफ का, दूसरा फ्री हो गए हो जिम्मेदारियों से, 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो ना। चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि हम ऑकल्ट मोडालिटी सीखने जा रहे हैं। और हमारी एक कल्चर है कि कुछ भी ऑकल्ट में सीखने से पहले 20-30 सेकंड के लिए हम उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, जिन्होंने हमें चूज किया इस रास्ते के लिए। वी आर स्पेशल सोल्स। हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं यहाँ पे। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी दुबई, इतने लोग हैं, क्यों इतने ही लोग बैठे हैं यहाँ पे? कोई वजह है ना, वो अभी नहीं समझ आएगी, आएगी धीरे धीरे समझ। तो 30 सेकंड के लिए आंख बंद करके जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसको थैंक्स कीजिए कि उन्होंने हमें चूज किया बाकियों से अलग कर। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी बहुत तरह की है मार्केट में। 4 तरह के आपको मैंने बता ही दिया। और पाइथागोरस क्यों बेस्ट है वो भी मैंने आपको बताया कि इन डेप्थ है। और इतनी डिटेल्स और किसी भी न्यूमरोलॉजी में नहीं है। कबाला और चलेडियन में भी इनकम्प्लीट कंटेंट है। ये वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरस जो है वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम इसमें हम प्रॉपर यूज करते हैं, क्योंकि 99% वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी सेम है। यहाँ पे हम प्लैनेट्स या ग्रहों की बात करते हैं, वो नंबर्स की बात करते हैं। कैसे कोरिलेट होता है वो हम क्लास में धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो जितना भी कंटेंट है इन 3 दिनों में, हमारी 3 दिन की क्लास है, आज की क्लास फ्री है। 3 दिन हमारा ये क्लास चलेगी, 1-1 घंटे की। ये 3 दिन में तो हम बेसिक करने वाले हैं, बट अदरवाइज न्यूमरोलॉजी का कंटेंट इतना ज्यादा है कि 6 महीने पढ़ते रहोगे ना, वो खत्म नहीं होगा। और वो कंटेंट जो है वो हमारे क्लास में दिया जाता है। सम न्यू पर्सन हैज ज्वाइन, नम्रता। नम्रता, वुड यू लाइक टू से समथिंग? बिकॉज हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं क्लास। हाय। हाय। बस हाँ, मैं बस थोड़ा भूल गई थी कि मुझे ज्वाइन करना है, तो बस अभी जस्ट याद आया, तो बस अभी कनेक्ट किया मैंने। कोई बात नहीं। चलिए, अभी हमने भी अभी शुरू किया है। इससे पहले हम थोड़ा जनरल नॉलेज ही ले रहे थे, बात कर रहे थे जनरल नॉलेज पे। तो ये ओके। मोडालिटी जो है, सॉरी, कोई भी ऑकल्ट की मोडालिटीज हमने प्रे किया है इससे पहले 30 सेकंड, क्योंकि ऑकल्ट में आना मजाक नहीं है। सिर्फ ऐसे ही कि ठीक है टाइम पास करने के लिए सीख लेते हैं, बाद में अलमारी में बुक्स पड़ी रहेंगी, नहीं। आप अपना कर्मा बिगाड़ते हो उससे। ठीक है, तो जिस पर्पस के लिए ईश्वर ने आपको चुना है, आपने वो समझना है। अब हम हमेशा बात करते हैं ईश्वर, गॉड, डिवाइन, क्या चीज है ये, कौन है? देखा है कभी किसी ने? लेकिन फील किया है, एहसास होता है हमें कौन है ये दुनिया जो चला रहा है, और इतनी एक्यूरेटली चला रहा है। फिजिकल रूप में तो कोई नहीं है, बट यस, एक एनर्जी है। एनर्जी है जो सारी दुनिया को चला रही है, जो आप में है, मुझ में है, अब पौधों पत्तों में है, जानवरों में है, सब में है एनर्जी। यहाँ तक कि पहाड़ों में भी है। अब आप देखिए कैलाश मानसरोवर जाइए,
वहां पर उस पॉइंट में जो एनर्जी है, आप जिस तरह के जाते हो वैसा सेम वापस आप नहीं आते, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो चुकी होती है। एनर्जीज, आप किसी से मिलते हो, ठीक है, कई बार क्या होता है, पार्टी में गए या ग्रुप में गए, 10 मिनट में हमें मिलके ना ऐसा लगता है कि यार बड़ा मजा आया इंसान से, हम खुशी खुशी वापस आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 2 मिनट बाद ही लगता है कि यार कब पीछा छोड़ेगा ये इंसान, होता है ना ऐसा। एनर्जीज, पॉजिटिव नेगेटिव। अब न्यूमरोलॉजी की जब बात आती है, न्यूमरोलॉजी यानी कि लॉजिकल साइंस ऑफ नंबर्स। व्हाई नंबर्स? अब आप देखो, जब आप पैदा हुए तो आप एक डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हो, राइट, नंबर। उसके बाद बड़े हुए, दिन है, महीने हैं, वीक्स के डेज हैं, नंबर्स। स्कूल कॉलेज में गए, रोल नंबर्स, मार्क्स नंबर्स, घड़ी का टाइम नंबर्स, करेंसी नंबर्स, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, फोन नंबर, नंबर्स ही नंबर्स है। आप देखो तो आपके चारों तरफ नंबरों से घिरे हुए हो आप। क्या चीज है ये नंबर? ये वाइब्रेशंस हैं प्लैनेट्स। शायद आज से पहले किसी ने सुना भी नहीं होगा कि नंबर्स क्या है। ठीक है, एक चलती फिरती चीज है, नंबर्स ही तो है। नो, जो डेट ऑफ बर्थ आप लेके पैदा हुए हो, नंबर्स जो उसमें है वो एक्चुअली प्लैनेट का एक कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ। ये नंबर जब आप पैदा हुए तब से शुरू हुए और जब तक आपकी आखिरी सांस है आपके साथ रहेंगे, इनसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। नंबर्स ऐसे वर्क करते हैं। अगर नंबर आपकी लाइफ में डिस्टर्ब होंगे तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। बीमारियां भी नंबर डिस्टर्ब होने की वजह से आते हैं। कुंडली में कैसे होता है, पंडित जी क्या बोल देते हैं, ये ग्रह जो है अस्त चल रहा है, ये वक्री चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमें समझ में नहीं आता वो क्या बोलते हैं। नहीं समझ आता ना? आता है किसी को? ऐसा तो नहीं कि आप में से कोई जो है वो कभी ज्योतिषी के पास या पंडित जी के पास गया ही नहीं होगा। जाते ही हो ना? समझ में आता है जो पंडित जी बोलते हैं? एनीवन? बी वोकल। जब तक आप अपने डाउट्स, अपने मन की बातें शेयर नहीं करोगे ना, क्लास में आपको मजा नहीं आएगा। यस ऑब्वियसली जो हम इंटरेक्ट करते हैं तो समटाइम्स समझ में आ जाता है, बिकॉज दे यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा यूज करते हैं। और कभी वो लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करके उसको बताते हैं। मे बी समटाइम्स आई फील दे वांट टू मेक अस फील कि दे नो अ लॉट देन अस, सो वी जस्ट लिसन टू देम। So they make it sound very complicated, but I'm sure all of us go through that feeling कि यस, ये समझ में आया, अगर सरल है तो, और नहीं समझ में आया तो ठीक है, चलो ऐसे कर लेते, खत्म करें। राइट। तो पाइथागोरस ये कहते हैं कि द होल वर्ल्ड इज गवर्न बाय द नंबर्स। सारी दुनिया, ये इंडिया की बात नहीं है, सारी दुनिया ही नंबर से गवर्न कर रही है। और आफ्टर डीप रिसर्च ये समझ में आया, ये कंक्लूजन हुआ कि जो हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो प्लैनेट्स हैं, 9 ही प्लैनेट है, इससे ज्यादा कोई प्लैनेट नहीं। वो प्लैनेट ही बेस है पूरी दुनिया के चलने का या हमारी लाइफ्स को गवर्न करने का। वो प्लैनेट्स ही हैं। और पाइथागोरस ने उन प्लैनेट्स को नंबर के रूप में स्टडी किया। प्लस यूनिवर्सल लैंग्वेज है एक, जो कि नंबर्स के थ्रू बात करती है हमसे। देखो कभी कभी आपको जोड़ों में नंबर दिखेंगे, 11 11 दिखेगा, 12 12 दिखेगा, 3 3 दिख जाएगा, उसका मतलब है बकायदा क्यों दिख रहा है ऐसा नंबर, आपको इंडिकेशन मिलती है कोई, प्रोवाइडेड आपको पकड़नी आनी चाहिए। हम सीखेंगे, अगर आप कोर्स में आए तो जरूर ये चीजें सीख पाओ कि वो नंबर जो है, तो जो यूनिवर्स है या डिवाइन है या जो सुप्रीम एनर्जी है, वो नंबर्स के थ्रू ही आपसे बात करती है। या फिर नेचर के छोटे छोटे चीजें होती हैं, फेदर है, बटरफ्लाईज है, उसके थ्रू बात करती है। बट मेजरली किसके थ्रू करती है? नंबर्स के थ्रू, राइट। तो बात करेंगे आज हम डेट ऑफ बर्थ की, या आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसे इंपॉर्टेंट है आपको। तो एक पेपर पेन सबके पास है ना, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने। कैसे लिखनी है? डे, मंथ एंड ईयर पूरा लिखिए।
लाइक 4 Feb 1980 है, जैसे 421980 ऐसे लिखना, राइट। अब जिनका 2 डिजिट में है, जैसे कोई 13 को है, किसी का 26 है, और दिसंबर है, 12 है या 11 है, तो आप, चलो मैं आपको ना शेयर करती हूँ स्क्रीन, में खुद ही करके दिखा देती हूँ कैसे करना। वेट, मान लीजिए किसी का 12 डेट है, मंथ है 11, और ईयर है 1971। विजिबल है सबको? ठीक है, आप लोगों ने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अभी ये सारे डबल डिजिट में हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड किया, 3 आया, फिर 11 को ऐड किया, 2 आया, फिर हमने साल को ऐड करना है, तो अपने अपने साल को ऐड कीजिए, 18 आया, मेरा 18 आ रहा है। 18 को वापस से मैं ऐड करूंगी तो आएगा 9, राइट। अगर आप इसको ऐड करोगे ना, 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1, तो कितना आ रहा है? मेरा इतना आ रहा है, आप अपना देखिए कितना आ रहा है। 18 आ रहा है, तो 18 को मैंने वापस किया तो मेरा आ गया 9, राइट। सिंगल डिजिट में आपके पास तीनों चीजें आ गई, डे, मंथ और ईयर। आपने इसको अब वापस से ऐड करना है, 3 प्लस 2 प्लस 9, इसको ऐड करूंगी तो कितना आया? आप अपना अपना करिए। इसका आया 14, मेरा आया 14, आप देखिए आपका कितना आया? राइट, 14 को मैंने वापस से ऐड किया तो आ गया 5, सिंगल नंबर। क्यों सिंगल नंबर चाहिए? ये सबको क्लियर हुआ कैसे करना है? एनीवन, एनी डाउट? क्लियर सबको? सी यस इन अ मैसेज एटलीस्ट। Yes, ma'am. Yes. सिंगल नंबर में हम क्यों लेके आए? क्योंकि न्यूमरोलॉजी, पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी सिर्फ 9 नंबर तक ही है, 1 से 9 नंबर तक। इसलिए कोई भी नंबर हमारे पास जब डबल डिजिट में आएगा, हम उसको तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक हमें वो सिंगल नंबर में ना मिले। अभी 9 नंबर ही क्यों? क्योंकि हमारे प्लैनेट्स 9 हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, गुरु है, बुध है, राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है एंड जुपिटर है। ठीक है, 9 प्लैनेट्स हैं, इसलिए सिर्फ 9 नंबर। मैंने बोला शुरू में कि पाइथागोरस जो है वो प्लैनेट बेस्ड उन्होंने न्यूमरोलॉजी बनाई है, यानी 9 प्लैनेट्स तो 9 नंबर है, राइट। और सारी दुनिया इन 9 नंबर में से ही किसी ना किसी से गवर्न कर रही, कोई 1 से, कोई 2 से, कोई 3 से, कोई 4 से, 5 से। ये जो डेट ऑफ बर्थ आप लेके आए हो ना, इसमें आपकी लाइफ की पूरी हिस्ट्री छुपी हुई। आप क्या हो, आप लाइफ में क्या करने आए हो, आप क्या करने वाले हो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम में छुपा हुआ है, पूरी की पूरी लाइफ की हिस्ट्री आपकी। बहुत सारे लोग 1 नंबर से गवर्न कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8, 9 से गवर्न कर रहे होंगे, अलग अलग। लेकिन हर किसी की लाइफ अलग है, सेम तो नहीं है। क्यों? ओके, कविता जी।
Yes, ma'am. Just 1 minute. I missed the last part actually. कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ जी, किसी को नहीं समझ आएगा पूछ लेना, शर्म नहीं करना, क्योंकि बिना समझ के आगे चलोगे तो कोई मजा नहीं आएगा और समझ भी नहीं आएगा आगे जा। सो आस्क, बी वोकल, कोई भी डाउट। आई हैव डाउट। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे आपने बोला कि डेट आपने जो लिखा है 12, तो मेरा 29 हो गया, मंथ 7 हो गया और ईयर 1984 हो गया। तो 29 को मैंने काउंट वापस किया से। तो ये 11 हो रहा है, तो मैं इस पे 2 लिखूंगी, राइट? यस, यस, एब्सोल्युटली। 7 मंथ है तो 7 ही लिखना है। हाँ जी। ओके। और 1984 है तो 22 मेरा बन रहा है। हाँ, तो 22 से क्या आ जाएगा फिर? 4। 22 से 11 आ जाएगा ना? नो, 22 + 2 क्या आएगा? 22 से 22 तो आ 11 रही है कैसे ना, आएगा? बिकॉज आपने जैसे यहाँ आपकी 89 थी तो आपने इसको हाफ किया था ना। Oh, no, no, no. I did 1 + 8 is 9. 1 1 प्लस + 8 8 को 9 किया मैंने, हाफ नहीं किया। अच्छा, ओके 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 ओके। आप मास्टर नंबर लेके बैठे हो मैम। लाइफ इज वेरी स्पेशल, आई वुड से। सो मेरा कितना बनता है ये 1984 का? क्या है मेरे को बताइए वापस से। 22 22 हो रहा है 22 हो गया ना, तो आप 1984। 4 से गवन करें, 22/4। 22/4, तो फिर मेरा 22 नंबर टोटल आपका क्या 22 आ रहा आया, है? पूरी डेट ऑफ हम्म बर्थ। ठीक है, हम हम्म करेंगे, मैं एक एक करके सबका डिस्कस करूंगी। 22 टोटल आया, तो यानी कि गवन आप कर रहे हो 4 से, जो कि 2 हम्म। से बना है। कंपाउंड आपका 22 है। जैसे मेरा ओके। कंपाउंड क्या आया? 14। यानी कि हम्म। गवन तो मैं 5 से कर रही हूँ, लेकिन कंपाउंड राइट। क्या है? 14। ओके। ठीक है। देखो, आप जब पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी सीखते हो ना, तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो। अच्छा। ये इतनी इन डेप्थ है कि मैं सिर्फ 5 को बारे में ही नहीं पढ़ूंगी, मैं इसके हम्म। कंपाउंड के बारे में भी पढ़ूंगी। ओके। इससे प्लैनेट्स का कंपाउंड लेके 5 बना हम्म। है सर आता। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ है सबको? डाउट मैम, तो हाँ ये मेरा इसमें टोटल पूरा नंबर कितना आएगा? 4 और 2, जैसे कि आपने 1+4 किया ना, 1+4 = 5 किया आपने। हाँ, तो 2 + 2 आपका 4 आएगा। ओके ओके फाइन। हाँ जी। और कौन थे? शकुन। मैम मेरा डाउट है ये कि इसमें हम पूरा ईयर वाला मतलब पूरा डेट ऑफ बर्थ का देखते हैं। मुझे जहां तक पता था वो यही था कि डेट ऑफ बर्थ मतलब जो डेट है उसको देखते हैं। जैसे मेरा अगर 27 है तो 2 + 7 9 देखते थे। मेरे को 9 ही लोग मतलब 9 के हिसाब से ही बताते थे, जहां तक मेरा अभी तक का नॉलेज था। चलो उनको छोड़िए, आप लॉजिकली खुद सोच के बताइए कि आप एक डेट को पैदा हुए, 27 को। हम्म हम्म हजारों करोड़ों लोग उस डेट को पैदा हुए होंगे। हम्म। तो आपका जो मंथ और ईयर है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में। होगी ऑफ कोर्स, हाँ हाँ। फिर वो जो तो आप इसमें फिर कह रहे टाइमिंग हो, भी जिस टाइम पे पैदा हुए उसका भी कुछ होगा सिग्निफिकेंस? नहीं, डेट का सिग्निफिकेंस है, लेकिन वो हाँ। इन्फ्लुएंसिंग है, वो आपकी लाइफ को नहीं गवर्न नहीं, नहीं कर रहा है। आई एम सेइंग लाइक दिस, अगर जिस टाइम पे जैसे 6:50 पे कोई पैदा हाँ, हुआ टाइम तो का भी उसका होता है, भी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में होता ओके ओके फाइन। है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यस। Yes. तो हिस्ट्री जो है एक इंसान की उसी टाइम लिखी जाती है जब वो पैदा हुआ, यानी जब वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको मिल गई। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका नाम। नाम जो स्पॉन्टेनियसली हेलो, रखा जाए। यस। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। अब मेरी बर्थ है 10th बर्थ डेट, लेकिन क्योंकि कुछ मेरे पास सर्टिफिकेट्स नहीं थे, लेकिन लीगली मेरी सब जगह 15th आती है। ये डाउट्स हम तो वो विनु बाद में करते हैं, क्योंकि ये अलग ट्रैक पे जाएगा हमारा। आई नो ये नहीं, तो वही मैं प्रॉब्लम्स फिर आएंगी। मेरे लिए फिर क्या होता है? मेरा जो आप बर्थ डेट शुरू से एक्चुअल लेके चल रहे हो, जो शुरू से लेके चल रहे हो ना, वो डेट ऑफ बर्थ मानी जाती जो लीगल सब जगह है वो नहीं। है। नहीं, अभी आप जो लीगल है वो आजकल भी यूज करते हो आप।
हाँ हाँ, मतलब सब जगह पासपोर्ट वगैरह पे वही है। तो फिर 10 क्यों यूज कर रहे हो? मेरी 10 लिखने में कहीं नहीं है, लेकिन मैं बॉर्न 10th को हुई थी। नहीं, तो जब बॉर्न हुए वही करना, क्योंकि कई बार क्योंकि पहले उसका क्या होता था, बॉन्ड मैं पेपर आपको वाला नहीं बताती हूँ, लेना लाइफ ना, है। लाइफ आपकी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रही होगी, उथल पुथल वाली जिसको कहते हैं, अप्स एंड डाउन वाली, क्योंकि एक्चुअल डेट कोई और है, लेकिन बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते टाइम ना डेट कई बार चेंज कर देते थे पुराने टाइम में। तो वही हुआ है मेरे साथ, और वही सब हुआ है, जगह वही हुआ 15 है। कोई बात नहीं, विल डिस्कस दिस टॉपिक ऑल्सो। ओके। ठीक है, ओके। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अभी किसी का डाउट होगा तो जब मैं कंप्लीट कर लूंगी ये वाला पोर्शन उसके बाद करेंगे, ठीक है? तो जो भी नाम रखा जाता है डेट ऑफ बर्थ के बाद स्पॉन्टेनियसली, प्लस अगर हमारे जैसे हिंदुओं के क्या होता है कि अक्षर निकलवाते हैं पंडित जी से, तो वो अक्षर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर उस डेट ऑफ बर्थ और टाइम के हिसाब से जो अक्षर निकला उसके अकॉर्डिंगली नाम रखा है तो लाइफ में चैलेंजेस कम आते हैं। और अगर आजकल जैसे है कि बच्चा अभी पेट में होता है तो पहले ही नाम सोचने लग जाते हैं कि बेटा होगा तो ये, बेटी होगी तो ये, प्रॉब्लम्स भी ऐसी ही आ रही। देखो आजकल के लोगों में लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है ना? तो वो नाम जो रखा जाता है वो ये डिसाइड करता है कि लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं आपको या मिलने वाली हैं वो कैसी होंगी, इजी होंगी, टफ होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, या क्या होगा क्या नहीं, वो आपका नाम डिसाइड करता है। आपकी हॉबीज, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ आपका नाम डिसाइड करता है। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके निकाला नंबर, उसको बोलते हैं टैलेंट नंबर, सोल नंबर, सोल पाथ नंबर, गवर्निंग नंबर, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, वो आपका सोल नंबर है। वो ये डिसाइड करता है कि दुनिया में आप करने क्या आए हो। आप ऐसे ही नहीं आए हो। अगर आपको लगता है कि ठीक है शादी हो गई, बच्चे हो गए, पाल लिए बच्चे, फ्री हो गए, रिटायर हो गए, नो, आपकी लाइफ की जर्नी की कोई वजह है, कोई गोल है, बेकार में कोई नहीं आया है। आप सोच के देखिए, वो जो एक सुप्रीम एनर्जी है जो कि पूरी दुनिया चला रही है, किसी को बेकार में ऐसे ही छोड़ देंगे, पैदा करेंगे ऐसे ही, या इंसानी जन्म लेने देंगे जो कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है? तो अपने आप को इवॉल्व कीजिए, अपने बारे में जानिए कि लाइफ क्या है, आपकी लाइफ क्या है, गोल क्या है उसका। तो आज मैं मोटा मोटा बता के ना आपको, आप लोगों की नंबर जो है वो डिस्कस करती हूँ। तो न्यूमरोलॉजी में हम 5 चीजें जो हैं, 10 चीज नंबर जो है वो निकालते हैं आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, 5 नंबर मेजर नंबर होते हैं, उसमें 5 नंबर माइनर होते हैं। जो मेजर नंबर है 5, वो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, यानी कि आपकी लाइफ कम वॉट में उन नंबर्स के अकॉर्डिंगली ही चलेगी, गवर्न करेंगे। लेकिन जो इन्फ्लुएंसिंग नंबर है, माइनर नंबर है, वो टाइम टू टाइम आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छा बुरा दोनों। वो डिपेंड करता है नंबरों की प्लेसिंग क्या है। ठीक है, तो मैं एक स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप वो पॉइंट्स लिख लीजिए। ठीक है, हाँ जी, ये हमने अभी किया, टोटल जो किया था डेट ऑफ बर्थ का, दैट इज कॉल्ड टैलेंट नंबर। ये मेजर नंबर है 5, टैलेंट नंबर है। सेकंड पे डेस्टिनी नंबर है, इसी ऑर्डर में लिखना है। तीसरा हार्ट नंबर है। चौथा पर्सनालिटी नंबर है। पांचवा अल्टीमेट नंबर। हाँ जी, हो गया। ओके, यस। टैलेंट नंबर हमने किया,
डेस्टिनी नंबर जो है ये आपके नाम से निकल के आता है, जो कि हम कल की क्लास में करेंगे। हार्ट नंबर भी इसी कैलकुलेशन में निकल के आएगा, पर्सनैलिटी नंबर भी, अल्टीमेट नंबर भी। अब ये इनका मतलब क्या? जो टैलेंट नंबर है ये आपकी लाइफ का मेन पर्पस है, आपके पैदा होने की मेन वजह है, आप क्या करने आए। ठीक। नाम डेस्टिनी नंबर डिसाइड करता है कि जो आप करने आए हो क्या वो इजीली कर पाओगे आप, या मुश्किलात आएंगी उसमें, या प्रॉब्लम्स आएंगी। नोइंगली अननोइंगली हर कोई सर्व कर रहा है इसको, कोई सही तरीके से कर रहा है, कोई गलत तरीके से कर रहा है। हार्ट नंबर डिसाइड करता है आपका प्रोफेशन, आपका जॉब, आपका करियर, ये हार्ट नंबर से पता चलता है। यानी अगर किसी कोई, जैसे आप देखो कि बहुत लोग होते हैं कि मान लो बैंक की जॉब कर रहे हैं, 80% लोग तो ऐसे ही होते हैं क्योंकि घर पालना है, परिवार को पालना है, जरूरतें पूरी करनी है, इसलिए नौकरी करनी है। अपने शौक के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, ड्रीम्स तो फॉलो ही नहीं करता है कोई। इसलिए हर बार ऐसा होता है कि आज नौकरी छोड़, कल छोड़। या बच्चों के ही आजकल देख लो, यही हाल है। हार्ट नंबर से आप पता कर सकते हो कि उस इंसान को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, किस प्रोफेशन में वो एक्सेल कर सकता है। यानी कि अगर हार्ट नंबर के हिसाब से आप करियर फॉलो करते हो तो जाहिर है ना कि उसमें एक्सेल करोगे, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी और अच्छा कमाओगे आप। राइट। चौथा पर्सनालिटी नंबर, यानी दुनिया आपको किस रूप में देख रही है, आप किस तरह से, आपकी बाहरी पर्सनालिटी है, ये आप पर्सनालिटी नंबर से जज कर लेते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर अल्टीमेट नंबर, टैलेंट एंड अल्टीमेट नंबर ब्रैकेटेड है। राइट, ये शुरू ये खत्म। अल्टीमेट नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि हर किसी इंसान की लाइफ में आता है, और वो कब एक्टिवेट होता है? आपके सेकंड हाफ में, यानी जब आप 50 के हो जाते, 45 46 के बाद इसकी वाइब्रेशन हल्की हल्की आनी शुरू हो जाती। कैसे पता चलता है? हम लोग क्या बोल देते हैं कि यार उम्र हो रही है अभी, इसलिए मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कई बार इंसान पूरी लाइफ बड़ा सीरियस रहता है, सडनली बुढ़ापे में आके ना उसको शौक होता है, अच्छा मैं आज मूवी देखूंगा, आज ये करूंगा। घर वाले क्या कहते हैं? बुढ़ापे की वजह से ना सठिया गया, अचानक से मूड हो गया इसका। अभी लेडीज का होता है, मेरे को ये खाना खाना, मुझे घूमने जाना है, पार्टीज ज्वाइन करनी है, तो हस्बैंड भी बोलते हैं कि सारी जिंदगी तो किया नहीं, अभी क्यों कर रहे हो? या कुछ सीखने का मन करता है, या ऑकल्ट में आने का मन कर रहा है। कैसे पता चलता है? अल्टीमेट नंबर से। अगर पता है आपको कि आपकी डेस्टिनी आपको सेकेंड हाफ में किस तरफ लेके जा रही है, देन गो विद द फ्लो ना। क्यों स्ट्रगल करना, क्यों उसके अगेंस्ट जाना? ईश्वर ने आपको ये नंबर दिया है, डिवाइन ने दिया है आपको ये नंबर, और आपको सर्व करना ही है, तो बिंदास कीजिए। और जब आप कहते गो विद द फ्लो जाते हो ना, तो लाइफ इजी हो जाती है, नो कंफ्यूजन्स, बर्डन ही नहीं है कोई, लाइट हो जाती है, और बाकी की लाइफ जीने का मजा ही अलग आता है। अब ये तभी पता चलेगा अगर न्यूमरोलॉजी सीखते हो तो, क्योंकि ये नंबर जो है आपको किसी न्यूमरोलॉजी में, किसी एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलते। पाइथागोरस की ये ब्यूटी। क्लियर? यहां पे किसी का कोई डाउट है? ओके। अब आप लोगों का जो जो Just, नंबर है, I'm sorry, हम Sucheta ji. Just a quick run through. Talent number is the one which you said total जो आता है, correct? हाँ जी, है ना? And destiny number is? आपके नाम से, वो हम कल करेंगे, वो कैलकुलेटिव पार्ट Okay, है, उसमें कैलकुलेशन करेंगे। okay. तो अभी आज तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन आज हम आपका जो जिस नंबर से आप गवर्न कर रहे हो उसके बारे में हम प्रिडिक्ट करेंगे। देखो जब आप 5 नंबर पता चले ना, इसके सामने 5 माइनर नंबर भी आएंगे। ठीक है, ये 3 दिन में हम काफी कुछ करने वाले। Sure, ठीक है, sure. वो 5 नंबर जो माइनर नंबर आएंगे वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगे Mm-hmm. या कर रही हैं। Mm-hmm. ठीक है, वो 5 नंबर अगर पॉजिटिव हैं, अगर इन 5 मेजर नंबर के साथ कंफर्टेबल हैं, तो लाइफ कंफर्टेबली निकल जाती। राइट। फिर इसमें हम ये Okay. भी देखते हैं आगे जाके कि कौन से मिसिंग नंबर हैं,
किस नंबर की रेपिटेशन बहुत ज्यादा है। अगर रेपिटेशन ज्यादा होती है किसी नंबर की तो हेल्थ इश्यूज आते हैं, कम होती है तो कुछ और प्रॉब्लम आती है। वो सारा कुछ कोर्स में हम करते हैं, राइट। तो चलिए एक एक करके जो जो आपने कैलकुलेट किया है, आपका जो सिंगल नंबर निकल के आया उसके बारे में बताइए। हाँ जी कविता जी शुरू करते हैं आपसे। 3। वंडरफुल, यू आर ब्लेस्ड विद जुपिटर, वेरी गुड। देखिए थैंक यू। अभी नंबर्स के जो ट्रेड्स हैं वो हमारे एडवांस कोर्स में, ठीक है। फिर भी हम ब्रीफ करेंगे, कल से हम शुरू करेंगे प्रॉपर कि किस नंबर के 9 नंबर के क्या क्या ट्रेड्स हैं। तो वो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी लाइफ जो है वो उस तरह जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है। मोटा मोटा, लेकिन सिर्फ एक ही नंबर पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करता, हमें 10 नंबर है हमारे पास, ठीक है। एक ही चीज तो नहीं चलती ना, खाली सब्जी में हल्दी डाल देंगे तो सब्जी बन जाएगी, ऐसा नहीं ना। तो सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन नंबर जो गवर्निंग नंबर 3, वेरी गुड। मेरा भी 3 है। 3 नंबर जो है जुपिटर का है। जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जिसे कहते हैं कि ऊपर वाला ना, मतलब सबसे प्रिय है उसको। मतलब जब ब्लेसिंग देनी होती है तो डिवाइन ढूंढती है कि 3 कहाँ पे मैं उसको दे दूं पहले। गुरु है, क्यों प्रिय है? गुरु है। गुरु एक ऐसा माध्यम है जो इंसान और ईश्वर के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो नेचुरली वो प्रिय होगा, नॉलेजेबल होता है, उसको नॉलेज सीख करना अच्छा लगता है, जो 3 से गवर्न करते हैं। मस्त लाइवली लोग, खुश रहने वाले लोग, ठीक है। ये मोटा मोटा बता अग्री। रही हूँ। क्यों? क्योंकि अग्री। हमें नहीं पता आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट। 11/10/1971। मास्टर नंबर लेके बैठे हो, 11/10, ओके 11 10। बैठे हो, ठीक है। अब कविता जी की जो लाइफ है ना, ये इमोशनल भी है। यहाँ पर इमोशनल होना होता है, इमोशनल हो जाती है। यहाँ दिमाग लगाना होता है, दिमाग लगाती है। बड़ा बैलेंस करके चलती है, ठीक है। या यू आर दूसरों राइट। का दुख दर्द जो है उसमें कूद पड़ती हैं। वेरी अपना ट्रू। कम सोचेंगी, दूसरे का ज्यादा सोचती हैं। एग्जैक्टली। घर वालों की डांट भी खानी पड़ती होगी कई बार। हाँ बहुत। लेकिन यहाँ पर आपने अपनी इस नेचर को छोड़ना नहीं है, बिकॉज आप वही करने आए हो, आपने छोड़ना नहीं है। तो आज जो आप यहाँ बैठे हो ना मैम, ये 3 नंबर की वजह से बैठे, ओके। जुपिटर की वजह से। अब ओके। ये नंबर तब मिलता है जब आपकी सोल का एवोल्यूशन होना शुरू होता है। बहुत लोग दुनिया में 3 नंबर वाले होंगे, राइट, लेकिन हर किसी की जर्नी सेम नहीं होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितनी जर्नीज करके उसको 3 मिला है ना। ये कोई फर्स्ट राइट। जर्नी तो है नहीं, और ना हमारी राइट। लास्ट है, पता ही नहीं कितनी हाँ। जर्नीज और हैं। तो ये 3 आया मतलब इवॉल्व हो रहे हो। इवॉल्व किस तरफ हो रहे हो? आपकी सोल का एवोल्यूशन हो रहा है, यानी स्पिरिचुअलिटी। आत्मा में मिलने का। दुनिया में बार बार आना जो बहुत कष्टदायी है, आगे आगे और गलत होने वाला राइट। अग्री। है ना। तो ये एवोल्यूशन की ओर है आपकी सोल, प्लस मास्टर नंबर लेके बैठे हो। आज नहीं तो कल आपने ऑकल्ट में आना ही था मैम, ओके। यस। राइट। दूसरी एक चीज मैंने नहीं बताई तभी, मैं मेंटली रिटार्डेड बच्चों को पढ़ाती हूँ 15 साल से। मुझे वंडरफुल, अवार्ड भी मिला है। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी मच इम्प्रेस मैम। शेख बहुत सही मोहम्मद कर की रहे हैं, वाइफ को। हाँ। वेरी या गुड। मस्ट जो से थैंक। कविता जी के लिए मैं डेफिनेटली बहुत कुछ बोलना चाहूंगी, बट अभी वो प्लेटफॉर्म इतना टाइम नहीं है। हाँ, बट कविता जी थैंक हमारी यू बहुत अच्छी स्टूडेंट है, और जैसा कि सुचिता जी ने बताया 110% करेक्ट है। वेरी मच, वेरी मच। एक एक चीज इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम। तो तो अभी मैम बहुत इंटरेस्ट ये आना मुझे भी एस्ट्रोलॉजी शुरू में हो नहीं गया पता चलता है, है। ये एस्ट्रोलॉजी में नहीं इतना एक्यूरेट पता चलता है जितना न्यूमरोलॉजी में पता चल जाता है। अभी आपके सामने कोई आके बैठेगा, आपको पर्सनालिटी नंबर से उसकी पर्सनालिटी भी पता चल जानी है। आपको हार्ट नंबर से ये पता चल जाना कि ये बंदा, कई बार आते हैं ना कि मेरी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही, ठीक है। हाँ। हार्ट नंबर से देखते हो कि एक्चुअली में इस बंदे का इंटरेस्ट कहाँ होना था और ये कहाँ बैठा है। तो यानी ये शिद्दत से कर ही नहीं रहा मेहनत, तो कहाँ से होगा? राइट। वहां से आप पकड़ लेते हो, पैर पकड़ के जाते हैं क्लाइंट आपके,
जब एक्यूरेसी के साथ करते हो। तो हम नहीं कर रहे, नंबर बता रहे हैं एक्चुअली। हाँ हाँ कविता जी की पर्सनालिटी ऐसे ही है, वो बहुत कुछ करते हैं बहुत लोगों के साथ और सेवा भाव से। हाँ, कोई उनका उसमें सेल्फिश नेचर नहीं है, सेल्फलेस सर्विस है इनकी। मैं तो तो मैंने नंबर खुद, देख के ही हैरान रह गई कि 3 और 11/2। तो मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मेरे को बीच में बोलना पड़ा। नहीं सॉरी, नहीं, कंटिन्यू। कोई बात नहीं। अच्छा थैंक यू, लगा। थैंक यू, तो जो थैंक कर रहे हो सही कर रहे हो, इसको छोड़ना नहीं है। यू। ओके, श्योर। ठीक है। हाँ दिल दिल मानेगा ही नहीं छोड़ने के लिए। हाँ, नहीं नहीं, करना ही नहीं मैम। करते हो तो ये नेक्स्ट लाइफ में कार्मिक बनेगा, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है। हाँ, वो मेरी मम्मी वही बोल रही है कि आप अपने नेक्स्ट वो सफल कर रहे हो, नेक्स्ट हाँ, जन्म का। यस, बिल्कुल सही कर रहे हो। हाँ, हाँ जी, नेक्स्ट श्रुति। माई नंबर जो आया है वो है 5। आई डोंट नो, आपको कंपाउंडेड चाहिए कि आपको कंपाउंड भी बताइए। कंपाउंड, मैं प्रिडिक्शन कंपाउंड करने इज लिए 14। कंपाउंड भी आपका और जानूंगी। मेरा सेम आया है। कंपाउंड इज 14 और द व्हाट यू कॉल रूलिंग नंबर इज 5। 14 इज कार्मिक, बिकॉज ये एडवांस का है, बट मैं प्रिडिक्शन के लिए मैंने कंपाउंड आपका पूछा है। नो डाउट आपको नॉलेज लेना, मतलब जैसे होता है ना, बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे की तरह, कि अगर कोई चीज दिख गई, कोई नॉलेज है या कुछ वैसा भी, अगर कुछ आर यू वर्किंग? नॉट एनी मोर। ओके। आई लेकिन एम जब काम वर्किंग भी हार्ड ऑन करते माय थे, किड विद 14-year-old। बट काम कर किया आपने, जॉब किया ना? हाँ। जॉब कर किया है, तो जब जॉब भी करते थे तो हालत इनकी ऐसी थी कि कोई काम अगर मिल गया तो भूख प्यास सब खत्म, वो काम पूरा कर लूं पहले। एनर्जी इतनी मतलब इनकी रहती थी कि, और अभी भी कम नहीं होगी एनर्जी, अभी भी ऐसी होगी। आई डोंट नो अभी इनका अल्टीमेट क्या है नंबर, तो खाली मैं उसकी बात कर रही हूँ जो गवर्न कर रहे हैं। 5 मैम, आप डेट बोलिए। क्या है आपकी? माइन इज 6 सितंबर। अभी आई जस्ट क्रॉस्ड माय बर्थडे। ओके, 6 सितंबर। ओके, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। 6 और 5, ओके। तो एक तो ये कि पैसा आपको बहुत अट्रैक्ट किया लाइफ में, पूरी लाइफ। एक मतलब जैसे होता है ना, ख्वाहिश होती है एक लग्जरी वाली लाइफ होनी चाहिए, और वो आपने जी भी है। सारे मटेरियल गेन्स होने चाहिए, और मिले भी होंगे, क्योंकि वीनस भी लेके बैठे हो और मर्क्यूरी भी लेके बैठे हो, तो नंबर बहुत बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि एनर्जीज, यानी कि जो 14 है ना, उसने आपको रेस्टलेस बहुत किया लाइफ। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपने कोई चीज शुरू करी है, कुछ टाइम के बाद जो है ना मन भर जाता है, फिर होता नहीं नहीं कुछ और करती, ये नहीं ये करती हूँ, ये नहीं ये, बट करते रहना है कुछ ना कुछ। जिम्मेदारी आप पर, जो मुझे लगा कि शुरू शुरू में आपने शायद अवॉइड किया होगा, लेकिन 6 नंबर ने आपको जिम्मेदारियां बहुत दी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। और आपने निभाई भी है। बट अंदर से ठीक है, जो आ जाती है जिम्मेदारी करनी है, ऐसे वाला हाल है। लेकिन आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेना जो है, शायद आप नहीं चाहते थे कभी। नॉट रियली। मेरा फ्रॉम बाकी के नंबर, इसलिए चाइल्डहुड मैंने वो सिचुएशन। एक क्लॉज किया कि मैं बाकी के नंबर नहीं जानती, प्लस अल्टीमेट नहीं जानती, क्योंकि मूड चेंज होता है 50 के बाद जाके, ओके। वापस से लाइफ चेंज होती है। लेकिन 14/5 ने आपको रेस्टलेस रखा है। ओके। डिस्ट्रैक्शन बहुत रही है लाइफ, चाहे वो जॉब की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, डिस्ट्रैक्ट होता रहा है बार बार। राइट मैम? आपने वो जिम्मेदारी वाली बात बोली, इट्स स्टिल स्टेइंग बिकॉज आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन एंड luckily from both sides of my families, they are very dependent on me when it comes to responsibility. हम्म। चाहे वो मेरे आज के डेट में इन-लॉज हो या मेरे my side of full family, they have always been forget that for me it's like anybody who's known to me, they think अगर कुछ है तो I have to tackle it for them. So I think it's and it has not been like it gives me any praises. I think it's a habit. So I now don't think कि मेरे पे responsibility है, तो it is something which is worrying me. But or neither I took it as a pressure. For me, I feel people give me problems, solution is there.
हाँ, इसीलिए मैंने बोला ना कि जो आई है वो निभानी है। हाँ और इट्स अ थैंकलेस जॉब। 6 नंबर वाले को मैम कभी क्रेडिट नहीं मिलता। नहीं नहीं, टचवुड, मुझे क्रेडिट भी मिला, मेरे कुछ क्रेडिट इन द सेंस कि थैंकलेस जॉब है। नहीं, वो तो वी आर मदर्स, तो हम सबका ही जॉब थैंकलेस शुरू हो जाता है, बट आई फील नो, आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट ना, राइट टाइम राइट थिंग्स स्ट्राइक एंड इट वर्क्स आउट। तो वो 5 नंबर को स्ट्राइक करती है। 5 नंबर एक बच्चे का नंबर है। बच्चा कैसे है? उसकी एनर्जी एंडलेस है, लिमिटलेस है, और ऐसे दिमाग में उसके आइडियाज घूमते हैं। मतलब 5 वाला कहते हैं ना कि आपकी चीज आपको ही बेच के आ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। ओके, ऐसे दैट्स बात करना लोगों से, रिलेशन बनाना आपको बहुत अच्छा लगता है। ओके। ओके, नेक्स्ट एनीवन? 4 दिख रहे मुझे। पेनू शपन, हाँ बोलिए। मेरा अल्टीमेट नंबर आप जानेंगे ना, अल्टीमेट नंबर मेरा 6 था, मतलब 27 सितंबर 1986। नहीं बेटा, अल्टीमेट नंबर आप कैसे निकाल लिया? मैंने तो सिखाया ही नहीं अभी। आप अच्छा नहीं, मुझे अल्टीमेट नहीं, टोटल टोटल टैलेंट नंबर था। टोटल बताइए क्या है। टैलेंट नंबर 6 आया। 6 है टोटल। कंपाउंड क्या है? किससे 6 बन रहा है? 27 सितंबर 1986। इसको जब आपने टोटल किया तो 2 डिजिट आए होंगे ना, वो कौन से थे? अच्छा, जो टोटल किया, जो 2 डिजिट आए थे, वो मैंने कहाँ निकाला था, एक सेकेंड। तब तक नेक्स्ट कर लेते हैं, कोई और बताए तब तक। हाय मैम। हाँ जी, बताइए। हाँ, मेरा नंबर था 4। 22 से आया। हाँ जी। और डेट ऑफ बर्थ क्या थी आपकी? 1984। नहीं नहीं नहीं, 29/7 29। 1984। हाँ जी। मेरा 29। भी सेम है, 24। मैम आप 29/7 29 डेट ऑफ बर्थ है। 1984। ओके, यू आर ब्लेस्ड विद 2 मास्टर नंबर्स। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। 22/4। ओके, मास्टरमाइंड है आप। अपने सर्कल में तो ऐसे हैं कि आपकी तरफ लोग देखते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए, कि चलो इसका सोल्यूशन नम्रता के पास होगा। राइट। और बहुत, जिसको कहते हैं ना, बिग हार्टेड वुमेन है आप। कोई एड्रेस हम्म। पूछने आ जाएगा तो घर तक छोड़ने जाएंगी, ऐसी। राइट। ठीक है। और 22/4 को पैसे की कमी नहीं है। हम्म। ठीक है। बाकी डिसिप्लिन वाली हैं। कोई काम अगर शुरू करती हैं तो जब तक खत्म नहीं करे चैन से नहीं बैठती हैं। साथ ही साथ इमोशनल भी हैं। मतलब दिल और दिमाग का जो बैलेंस करके चलती है ना, कमेंडेबल है। यानी यहाँ पर इमोशनल होना है, वहां पर पूरी तरह इमोशनल है। कई बार झटका भी खाती होंगी क्योंकि लोग यूज करके निकल जाते हैं। राइट। मोस्टली आजकल के फ्रेंड्स कुछ ऐसे ही हैं। नहीं, आजकल के फ्रेंड्स नहीं मैम, आपके नंबर्स ऐसे हैं क्योंकि आप इजीली अच्छा। ट्रस्ट कर लेते हो। राइट, ये तो है मेरी अब पता नहीं मैं क्या इसको बोलूं, क्या प्रॉब्लम है। नो, बट शायद ये मे प्रॉब्लम बी नहीं है। नंबर के कारण शायद ऐसा फील होता होगा मुझे। हाँ, बट ये है, ठीक है। ये मैं मानती हूँ, किसी ने ये थोड़ा ऐसा सा होता रोना है। धोना किया, आप पिघल जाते हो। हाँ। है ना? कोई बात नहीं। राइट। ये तो अभी गवर्निंग नंबर है, विच आर वेरी गुड। बहुत अच्छे नंबर हैं दोनों आपके। लेकिन बाकी के नंबर्स क्या हैं वो देखेंगे फिर, जो बाकी के करेंगे। ठीक है। तो मैम मेरा टोटल मतलब नंबर क्या, मतलब 4 फोर। है। तो तो मेरा क्या आया, गवर्निंग बाय मतलब। राहु। आप राहु से गवर्न कर रही हैं, लेकिन 22 आपका कंपाउंड है, विच इज अ मास्टर नंबर। जो मैंने बताया कि 1 से 9 तक न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। राइट। में 9 नंबर्स के अलावा 2 नंबर मास्टर नंबर होते हैं। यानी जिसका भी कंपाउंड 11 से 2 बन रहा है या 22 से 4 बन रहा है, वो मास्टर नंबर। 2 ही नंबर है। और किसी ओके। किसी के पास होते हैं, किसी के पास होते ही नहीं है। आपके पास दोनों ही है। हम्म। ठीक है। और इसके अलावा 4 कार्मिक नंबर हैं। 14 से 5 बनेगा तो कार्मिक है। हम्म। 13 से 4 बनेगा, वो भी कार्मिक है। हम्म। 16 से 7 बनेगा, वो भी कार्मिक है। और हम्म। 19 से 1 बनेगा,
वो भी कार्मिक है, 4 कार्मिक है, यानी 9 नंबर हो गए आपके न्यूमरोलॉजी के मेन, 2 आपके मास्टर नंबर हो गए, 4 आपके कार्मिक नंबर हो गए। कार्मिक नंबर जो है पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि हम कोर्स में करते हैं कि कार्मिक नंबर्स हैं क्या, क्या प्रॉब्लम्स, मतलब इतना बढ़िया चीज है ना, मैं एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, इसलिए क्लास मेरी कई बार 2 घंटे की भी हो जाती है। कार्मिक नंबर एक्चुअली आज टॉपिक नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको क्या है। अगर आपके ये 5 मेजर और माइनर नंबर में आप कार्मिक नंबर लेके बैठे हो, यानी आपका कंपाउंड कहीं पर भी 13, 14, 16 या 19 आ रहा है, हर कार्मिक नंबर अलग तरह की प्रॉब्लम लेके आएगा आपकी लाइफ। तो आप वहां से पकड़ लेते हो क्लाइंट का कि अच्छा ये है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और उसकी रेमेडीज होती ओके, है, राइट। राइट, तो हमने तो अभी आज थोड़ा ब्रीफ ही किया है कि किस नंबर से आप गवर्न कर रहे हो, वो देख के, ओके, राइट। थैंक यू। यस, शकुन इज गेटिंग इम्पेशेंट। यस शकुन, बोलिए। No, because my daughter is not well. I told you ना. हाँ, कोई बात She नहीं, got बताइए, up and फटाफट down. बता दे, कोई बात। मेरा जो 2 नंबर लास्ट में आया था, that was 24. 24 से तो 6 बना ना। हाँ जी, वेरी गुड नंबर। ओके, और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 27 September 1986. 27। शकुन, दूसरों के लिए जीने के लिए आए हो आप, है ना? बिल्कुल. तो कोई बात नहीं, फिर क्या है, अच्छी बात है। 6 और 9 लेके बैठे हो, हाई डायमेंशन के नंबर है 3, 6, 9, यही 3 नंबर है हाई डायमेंशन के, और आप 6 और 9 लेके बैठे हो। पैसा शायद आए ना आए उतना, लेकिन लोगों में लोकप्रिय बहुत रहो, प्यार बहुत करेंगे लोग। बिल्कुल जी. ठीक है, जर्नी अलग है आपकी, आपकी जर्नी मटेरियल वर्ल्ड की नहीं है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी सीखो, मैंने और किसी को नहीं बोला, बट आपको बोल रही हूँ, जी. सीखो, ओके. जरूर सीखो। आपको अपनी लाइफ के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये नंबर ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं दूसरों के लिए, हमारे लिए कोई नहीं करता, है ना? जी. डोंट वरी एंड डोंट क्राई। Yes, yes. No, no, I'm fine. ठीक है, I'm used to it now. तो यूज टू नहीं होना, इन नंबर की पावर्स को पहचानना है, आप बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनोगे। गवर्न ही ऐसे नंबर से कर रहे हो आप, ठीक है। जी. नंबर बहुत पावरफुल है आपके, और जो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है, कमाल का कॉम्बिनेशन है, कमाल का। ठीक है, इसलिए इन नंबर्स की पावर पहचानो कि क्यों मिले हैं ये नंबर, और बिल्कुल अपना काम शुरू करो करने के बाद। ठीक है, ओके. अच्छे नंबर है, गुड। हाँ जी, शगुन हमारे नेक्स्ट। साथ बहुत टाइम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप कहाँ हैं, इंडिया में या यूएई में? नहीं, नहीं, मैं यूए में ही हूँ, मैं शारजा में. ये बहुत टाइम से कुछ ना कुछ कोर्स करने की हमेशा कोशिश करते हैं, बट फाइनली आज मिल गए हैं सुचिता जी के साथ। चलो। तो आपकी मेंटोर आपको मिल गई हैं। ओके. ठीक है, अब इनको पकड़ के रखना है आपने। एंड रूहानी के साथ आई थिंक 2-2.5 साल हो गए रूहानी, हमारी बात, आप जाके हम कनेक्ट हुए। बात मतलब ऐसी ऑफ एंड ऑफन चल रही थी, बट ये होती है डेस्टिनी, जी. आपको लेके आएगी। मैं इंडिया में रहती हूँ, लेकिन पिछले 3 महीने 4 महीने से मैं दुबई में हूँ, लेके आई है डेस्टिनी यहाँ पे। एंड वी पर्सनली मेट ऑल्सो, मिले हैं हम एक दूसरे, जबकि पहले फोन पे ही बात होती थी, यहाँ कभी मैसेज हो जाता था। देखिए, ये ये डेस्टिनी। जो साइंसेस है ना, ये एक डिवाइन साइंस है, ये हर किसी के लिए नहीं बनी है। और आपसे तो बहुत बात हुई है शगुन जी, शायद फोन पे भी, इंडिया से भी बात हुई है, अगर आपको जी. याद हो। जी. और जी. ये बहुत बार कंसल्टेशन के लिए भी उन्होंने अप्रोच किया है, बट कुछ समहाउ समथिंग समटाइम हैपेंड ऑलवेज, राइट? बट अभी अब मैंने आपने, मोस्टली आपको कंसल्ट किया मेरे हेल्थ इश्यूज जो हैं उसकी वजह से, बिकॉज दैट इज कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सिंस पास्ट 2-3 years, स्पेशली कोविड के बाद. करेक्ट करेक्ट, बट अभी आपके पास सोल्यूशन खुद ही आ गया चल के। आई थिंक इनके पास रिपीटेड 6 बहुत है, मैंने अभी देखा नहीं है, बट इनकी बात सुन के ही लग रहा है। और मैम आपके शकुन जो इश्यूज है ना, वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, फिजिकल इशू नहीं है कोई, यहाँ से शुरू होके सोच सोच के एंजाइटी, उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं। ओवर थिंक करते हो बहुत ज्यादा, हाँ. डोंट डू बेटा,
चलो कोई बात नहीं, आपको तो, आप मुझे पकड़ो ना पकड़ो, मैं आपको पकड़ूंगी। अभी आप सोचो, आपका ब्लेस्ड टाइम शुरू हो चुका है, तो जस्ट गो विद द फ्लो, राइट? ओके। ओके ओके, चलो नेक्स्ट कौन है? दो बचे हैं शायद, मैं मीनू और मीनू। बेनू। हाँ मीनू, बोलिए। पहले मुझे जरा बताइए कंपाउंड नंबर क्या होता है? आपने जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया है ना, सारी का। उसमें लास्ट में 2 डिजिट आए होंगे, उन जो लास्ट वाले 2 डिजिट है ना, जिसको जोड़ने के बाद फिर लास्ट में एक नंबर आया, वो मुझे बताइए, और सिंगल नंबर भी मेरा बताइए। सिंगल नंबर तो 9 आया है। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड मतलब ईयर वाला? नहीं, जो लास्ट में टोटल, किसका टोटल 9 है? पूरी डेट ऑफ बर्थ का। हाँ, डेट मेरा ऑफ है बर्थ। 10th जुलाई 1981। ओके, टोटल किया आपने डे और मंथ और ईयर को अलग अलग। 1 + 7 + 1 तो 9। ओके, सिंगल 9 है, ठीक हाँ, है। डेट ऑफ बर्थ है आपकी 10th जुलाई 1981। 1 और 9। गुस्सा बहुत आता है जल्दी आपको, हाँ। और उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। हाँ। और जब आता है तो ऐसा आता है कि मुंह से कुछ भी निकल जाता हो, हाँ। उसकी वजह से रिश्ते भी बिगड़ते हैं। हाँ। और क्या बोलूं, बताओ। ये इस पे कंट्रोल करना है बेटा। नॉनवेज हम्म, खाते हो? नहीं नहीं। ट्यूसडे के दिन रेड कलर का कपड़ा, या लाइफ में वैसे भी प्योर रेड कभी नहीं पहनना आप। उसको मतलब कुछ कॉम्बिनेशन में पहनो, लेकिन प्योर रेड नहीं पहनना कभी। ओके। ठीक है। ट्यूसडे के दिन स्पाइसी फूड नहीं खाना, फ्राइड नहीं खाना, नहीं तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, एलर्जी, स्किन एलर्जी। चश्मा लगा हुआ है? अभी अभी बस रीडिंग का लगा। नंबर बढ़ेगा, ध्यान रखो। ओके। ठीक है, ओके। वैसे और 9 नंबर होता क्या है? 9 नंबर मंगल है, एक सूर्य है, दोनों फायर एनर्जीज है। आग ही ओके। आग लेके बैठे हो, इसको यूज करो, इसका यूटिलाइज करो। एक नंबर से न्यूमरोलॉजी शुरू हो रही है, 9 पे खत्म हो रही है, और आपके पास दोनों ही है। पावरफुल नंबर है दोनों, लेकिन हमें पता ही नहीं है। एक्चुअली अपनी पावर, अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं पता होता हमें। यही तो मैं कह रही हूँ कि हम जिंदगी ऐसे ही जीते रहते हैं। बट आई थिंक वी आर ब्लेस्ड। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, जुड़े हैं, तो वी आर ब्लेस्ड। कुछ पता चल रहा है ना अपने बारे में। भले ही कोर्स मत करो, हम्म, कोई बात नहीं, कुछ तो सीखोगे आज, थोड़ा बहुत तो पता चलेगा। वैसे तो चलो, हाँ। ये लास्ट उससे लेने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा 3 दिन का हमने रखा था, न्यूमरोलॉजी की क्लास रखी है, जिसकी फीस मात्र 111 दिराम जो है, फीस है। कोई बड़ी फीस नहीं है। और हम बहुत कुछ डिटेल में करने वाले हैं, जो 2 दिन बचे हैं। आज तो सिर्फ हमने एक ही नंबर किया है, हम 10 के 10 नंबर करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ कैलकुलेट कैसे करना वो भी सिखाऊंगी। इसके बाद आपका मन बनता है तो पूरा कोर्स कीजिए, नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 दिन का जरूर कीजिए। बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। और 111 दिराम तो यार एक डिनर में भी नहीं इतने लगते, मतलब इतने में एक डिनर करने जाते हैं तो इतना लग जाता है ना। तो नॉलेज ले लोगे अगर इतने में, तो क्या बुरा है। 3 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपके साथ रहती है। लास्ट डे में कुछ और अलग भी करके दिखाऊंगी, दिखाऊंगी आपको एडिशनल भी, और क्या क्या इसमें हो सकता है। ठीक है। तो आज की क्लास फ्री थी, लेकिन कल जो है वो हमारी पेड क्लास रहेगी। तो जो लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जूम का लिंक उन लोगों को मिलेगा, क्योंकि पेड ग्रुप जो है वो अलग बनेगा अभी। तो अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं बाकी के 2 दिन भी, तो आप 111 दिराम पे करके, रूहानी जी का जो भी, रूहानी जी आप इनको लिंक शेयर कर देना पेमेंट का। तो आप ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो कल का लिंक जो है वो आपको जूम लिंक मिल जाएगा। ठीक है। एंड आई रियली होप कि इतने लोग तो मैं कल वापस से देखना चाहती हूँ। मुझे आपसे एक पूछने की, आप हाँ सबको जी, बता रहे थे हाँ जी, एक तो आप बता रहे थे सबको उनका रूलिंग प्लैनेट हाँ हाँ। एंड कार्मिक, नंबर्स। वेरी दिस, हाँ।
I'm not that knowledgeable as this guy, कोई so बात नहीं. tell me karmic number. हाँ, तो वो in my case what is it? Your planet is Mercury. 5 बुध, जुबान, नॉलेज. Okay. जो कार्मिक नंबर्स है उसके बारे में मैंने सिर्फ आपको एक आउटलाइन दी है कि कार्मिक नंबर्स होते क्या हैं, लेकिन उसके बारे में हमने डिस्कस कुछ नहीं किया. So what is it as in जैसे आप कुछ लोगों को बता रहे थे कि उनका कार्मिक नंबर ऐसे है मतलब आपका 4. कार्मिक है, आपका 14 से बना है. हाँ. अभी तक और किसी का आया नहीं सामने. ओ अच्छा, 14 इज द 14 कार्मिक. इज कार्मिक. यस. क्योंकि आपने कंपाउंड बोला, आई गॉट ऑल मिक्स्ड अप. ओके. नहीं. ऑलराइट, थैंक ठीक है. यू. चलिए, एक और बचे हमारे पास, विप्स. Hi. 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 Thank you so much, Suchita ji. Thank you. My total number is 8 and और compound number is 26. बच गए. बच गए मैम आप. किससे बच गए? बच गए इसलिए कि कंपाउंड आपका थोड़ा सा सॉफ्ट है. तो अच्छा, ओके. ये बाकी मेहनत तो बहुत 8. करवाया है, इस नंबर ने मेहनत बहुत करवाया. यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन. हम्म. आपको ऐसा लगता है कि जो मतलब आपने बोल दिया वो सही है, करेक्ट. हम्म. स्ट्रॉन्ग हेडेड दैट वे. आर यू वर्किंग? नहीं. हाउसवाइफ है. Housewife, but I have like interest in this occult and all. Tarot reading मैं पहले करती थी. फिर एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, but then not following that much because इतना कुछ डिटेल में नहीं पढ़ पाई मैं. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी मोडालिटी करो ना, देर से करो लेकिन हम्म. कंप्लीट करो. लोग हम्म. बहुत बहुत स्टूडेंट आते हैं मेरे पास जो ऑलरेडी कहीं से थोड़ा थोड़ा किया होता है, फिर वो हम्म. वापस से यहाँ से करते हैं तो डबल पैसा आपका खर्च होता है. हम्म. इसलिए हमने ये 3 दिन का क्लास रखा है. ये कोई महंगी क्लास नहीं है, ताकि अगर कल को हम्म. आप एडवांस कोर्स के में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या आपके हम्म. इंटरेस्ट बन भी रहा है कि आपका पैसा वेस्ट ना हो, स्टक ना हो. बेवकूफ नहीं बनाते हम किसी को. इसलिए ये रखा था 3 दिन का कि आप लोग करो, समझो इस चीज को क्या है. इंटरेस्ट बनता है तो मास्टर क्लास में ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं. मास्टर क्लास क्या है, उसमें क्या क्या फायदा होगा, आपको क्या क्या मिल सकता है, वो हम 3rd डे पे आपको सारा डिटेल में बताएंगे. ठीक है. ओके. हम्म. आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था? अच्छा, विप्स है. नाम क्या है आपका? 21st. विप्रुता. विप्रुता. ओके. हाँ जी, हम्म. क्या है डेट? 21st November 1983. वंडरफुल मैम. अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते. नॉलेज बहुत है. मतलब कोई भी चीज कायदे से करना. और एक गुरु और शनि दोनों लेके बैठे हो, क्या बोलूं मैं आपकी. वेरी स्ट्रांग हेडेड, लॉजिक के साथ जाते हो. बेवकूफ बनाना आपको ना, मतलब बहुत मुश्किल है. हाँ, मतलब मैं जल्दी से ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मतलब ट्रस्ट नहीं कर. जब तक हाँ मुझे नहीं समझ में आता तब तक. बाकी जिंदा दिल इंसान हो, हंसने खेलने वाले, जिंदगी हम्म. ऐसी जीने वाले. लेकिन जिंदगी लाइफ ना मेहनत बहुत करवाती है आपसे, हार्डवर्क बहुत करवाती हम्म. आई थिंक इसीलिए एस्ट्रोलॉजी अभी तक सीख नहीं पाई हूँ, मे बी. है. न्यूमरोलॉजी सीखिए. इजी है, ऑर्गेनाइज्ड है, और मजा बहुत आया. मतलब मैं इतना तो गारंटी के साथ इतने स्टूडेंट पढ़ा चुकी हूँ अब तक मैं 10 सालों में, कि लेडीज बोलती है कि मैम बिजी कर दिया आपने. और वो हम्म. कल मेरे से ज्यादा उनको होता है आगे. मैम इसका क्या, आगे मेरे से आगे भागते हैं. तो जब क्लास हमारी शुरू होती है ना, हम्म. तो बोलती पहली चीज मैं बोलती हूँ, मेरे साथ साथ चलना है. क्योंकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी होता है, अच्छा इसका देखूं पति का देखूं. फिर वो अपने आसपास लोगों के नंबर्स निकालने शुरू करते हैं. अच्छा वो कैसा है, तो वो कैसा है. आपके रिलेशंस ठीक होने शुरू हो जाते हैं जब अपने हम्म. न्यूमरोलॉजी सीखते हो. क्योंकि हमें क्या लगता है ये इंसान ऐसा है. जब हम देखते हैं कि किस नंबर से गवर्न कर रहा है, क्या नंबर्स की वाइब्रेशन लेके बैठा है जिसकी वजह से ये ऐसा है, तो आपकी बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होनी शुरू हो जाती है, रिश्ते अच्छे होने ट्रू. शुरू हो. राइट. 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 हाँ जी. या. और किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो? यस रोहानी, ऑल योर्स. So चलिए. I think we're done for today.
I have यस one question. हाँ जी बोलिए। मेरा कंपाउंड नंबर 12 है। और 3 है ना आपका मैम, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग नंबर है। मेरे को पता नहीं था कंपाउंड आपका, लेकिन आपके नंबर वैसे ही देख के मैंने कह दिया कि आप बहुत ऊपर के इंसान हो अभी। थैंक यू। बहुत बढ़िया नंबर लेके आए हो, बहुत अच्छा, ब्लेस्ड। थैंक यू। ये आई तो वुड अभी लाइक टू खाली डेट ऑफ बर्थ और टोटल उसका बताया, बाकी क्या क्या लेके बैठे हो पता ही नहीं है, देखेंगे। हाँ, I would like to join, but Thursday I have a social event. तो रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी। एक और चीज है रूहानी, क्या हम थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं क्लास? बिकॉज ये लंबी चलती है, मतलब 1 घंटा हम बोलते हैं, लेकिन मेरी क्लास थोड़ा कभी एक जल्दी घंटा शुरू चलती नहीं। थोड़ा जल्दी शुरू करना बेटर है। अगर सभी हाँ बोलते हैं तो विल गो विद I'm fine. I'm fine. We can start by 8:30. Is that okay with 8 everyone? या 8 8:30 शुरू कर सकते हैं ना, ये डिनर करना होता है 8। ठीक है 8:30 is 8:30 कर fine. लेते हैं, Yeah, 8:30 कर 8:30 is लेते हैं। fine. We'll start by और 8:30. हाँ आई रिपीट वंस अगेन, हमारी 3 दिन की क्लास है आज। पहले 3 का 4 दिन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो देख लेंगे। और आज का जो था क्लास वो फ्री क्लास था सबके लिए, लेकिन बाकी की क्लासेस पेड हैं। सिर्फ 111 दिराम आपको देना है रूहानी जी को, और स्क्रीनशॉट भेज देना है ग्रुप में, ताकि आपको कल का जो लिंक है क्लास का वो मिल जाए। 3 दिन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आज की तो फ्री है, लेकिन बाकी की रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होगी जिन्होंने पे किया है। और कल मिलेंगे, एंड आई रियली विश कि सभी से मैं बात करूं कल। तो हाँ Yeah. जी। So thank you सुचिता जी को बहुत बहुत फिर से कि इन्होंने मेरे हमारे लिए टाइम निकाला। इनके स्टूडेंट्स बहुत हैं, इनकी क्लासेस बैक टू बैक चलती रहती हैं। स्टिल शी इज एबल टू फाइंड द टाइम फॉर अस। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? नहीं Okay. ठीक है, मैं ही इतना So बोल देती हूँ ना कि आई कैन सो होल्ड। पेमेंट डिटेल्स आपको ग्रुप में डाल दी जाएंगी। यू कैन देन एनरोल फॉर द कोर्स एंड विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो 8:30. यस ओके, ठीक है जी। Thank you. थैंक थैंक यू यू Thank सो you मच both. एवरीवन सो फॉर मच ज्वाइनिंग। साथ जुड़ने के लिए। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। Thank थैंक you यू। so much. थैंक यू। Thank you. Thank you. ओके Thank you.